The first exercise is of objective type questions. In that one, first is fill in the blank. Here two options are there. You have to choose correct option and then you have to write it down in the blank. This exercise you will do into the textbook only as per the instructions. The first blank is a dash is used to hold a small sample of the specimen. Here two options are there, microscopic slide and eyepiece lens. Now here eyepiece lens is there on the top of the microscope. तो आंसर क्या आएगा? स्लाइड, दैट इज माइक्रोस्कोपिक स्लाइड जिसमें हम सैंपल रखते हैं और हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में. तो करेक्ट आंसर इज माइक्रोस्कोपिक स्लाइड. सेकंड इज सम माइक्रोब्स लिव अलोन while others grow in group called. अलोन रहते हैं उसको हम सॉलिटरी बोलते हैं और जो ग्रुप में रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलोनियल. तो इधर ऑप्शंस कौन से हैं? स्पेसिमेन एंड कॉलोनी. तो क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा? कॉलोनीज. सो राइट इट डाउन, कॉलोनीज. देन थर्ड वन इज डैश इज ए यूनिसेल्युलर algae. Here two options are there, Chlamydomonas and Chlorella. Here Chlamydomonas lives solitary while Chlorella found in colony. That is why we will choose first option, that is Chlamydomonas, because generally the organism that lives in colony misinterpret with the multicellular organism. So here option Chlamydomonas is the correct one. Next fourth is fermentation by yeast produces dash. इसके लिए आपको रिफ़र करनी पड़ेगी फर्मेंटेशन की डेफिनेशन कि क्या प्रोड्यूस होता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन, वाटर, ऑक्सीजन और अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. देन नेक्स्ट इज शेल्स ऑफ डैश गिव अ ग्रीटी टेक्सचर टू टूथपेस्ट एंड हेल्प्स इन क्लीनिंग द टीथ. क्लोरेला आएगा या डायटम्स आएगा? रिफर द मेडिसिनल यूजेस ऑफ microorganism. You will get the answer, that is diatoms. Then next is when a disease causing microbe enter our body, substance called dash are produced. Antibodies or vaccine. Now vaccines we are giving from the outside the body and antibodies will be produced inside the bodies. So what will be the correct option? Antibodies. Seventh is dash is used in the treatment of sewage, bacteria or fungus. So the correct option is bacteria. Eighth one is dash is a plant disease caused by a pathogen. So you have to refer the disease caused by pathogens to plant. You will get the answer, that is citrus canker. Ninth is food dash involves killing microbes or preventing their reproduction. कल्टीवेशन और प्रिजर्वेशन. कल्टीवेशन का मतलब तो ग्रो करना होता है और यहाँ पे क्या पूछा है? प्रिवेंट करना है, तो आंसर विल बी प्रिजर्वेशन. 10th इज इन डैश फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कैंस टू प्रिजर्व दैम. फ्रीजिंग और कैनिंग. फ्रीजिंग में तो हम खुला भी रख देते हैं, तो आंसर क्या आएगा? कैनिंग. करेक्ट ऑप्शन इज कैनिंग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट T for the true and F for the false statement, and you also have to correct the false statement. Now you have to do correction in the textbook only we will correct the wrong word. The first one is all microorganisms are harmful and cause diseases in plant and animals. We have already learned that all microorganisms are not harmful, some are useful also. So this statement is false. So here incorrect word is all. So here I have highlighted the incorrect word. So here you have to underline the incorrect word, that is all, and write some as I have written. Then second is pathogens enter the body of a healthy person through air and water only. It is also false statement because we have learned that pathogens can enter into the body through air, water and food. So here only word is incorrect. So underline only and write down and food. Third one is when antibiotics are injected within a human body, the body produces substance called vaccines. Now as we already knowing
that our body produces antibodies when vaccines are injected. So here these two words are incorrect. First is antibiotics and second one is vaccine. So underline this both the words. Then correct it that instead of antibiotics, what would come? Disease causing microbes. And instead of vaccine, what will come? Antibodies. So this one is false statement and correction would be when disease causing microbes are injected within a human body, the body produces substance called antibodies. Then next is, in nature, nitrogen is fixed during lightning or by nitrogen fixing bacteria and blue-green algae. That is correct. So write down T. When plants and animals die, sulfur in their bodies is decomposed and returned to the air. Now here, as we have already studied in nitrogen cycle, that at the end, some bacteria are responsible for decomposition of nitrogen compound. So here the wrong word is sulfur. Instead of sulfur, nitrogen compounds will come. So this one is false statement and the correction will be when plants and animals die, nitrogen compounds in their bodies is decomposed and returned to the air. Then sixth one is grazing by cattle causes a disease called fin rot. Here fin rot is wrong word. So this statement is false. Instead of fin rot, anthrax will come. Seventh is foul odor is the only symptom that shows that a food has become unfit for the consumption. This is also false statement because we have already learned that 5 or 6 symptoms are there that shows that this food has become unfit for the consumption. So here instead of only, we will write one of the. Understood? समझ में आ रहा है? Foul odor एक सिम्टम है जिसे हमें पता चलता है कि फूड अभी खाने लायक नहीं है, तो इधर आएगा ओनली की जगह पे वन ऑफ दी. एट्थ इज बॉइलिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड आइटम्स. इट इज़ ऑल्सो फॉल्स. इंस्टेड ऑफ वाटर क्या आएगा? माइक्रोब्स. हम बॉयल क्यों करते हैं? जो भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको निकालने के लिए, उसको मारने के लिए. तो इधर करेक्शन आएगा बॉइलिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम द फूड आइटम्स. Then next is pasteurization involves heating a foodstuff to a high temperature and then cooling it rapidly. That is true. Sorry, I forgot to mention true over here, but please mention it T because it is true statement. Then 10th is all diseases are communicable diseases caused by pathogens. Now again it is false because सारे के सारे तो communicable diseases नहीं है. ठीक है, तो इधर रॉन्ग वर्ड कौन सा है? ऑल. तो इंस्टेड ऑफ ऑल वी विल राइट सम डिजीजेज आर कम्युनिकेबल डिजीजेज दैट इज कोज्ड बाय पैथोजेंस. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. दीज ऑल्सो यू विल डू इन टेक्स्ट बुक ओनली. First one is which of these is a thin sheet of glass that is used to cover the sample viewed under a microscope. Now here 4 options are there. In that 4 option, slide and cover slip both are thin sheet of glass, but इसमें पूछा क्या गया है कि सैंपल के ऊपर रखा जाता है, तो हम क्या रखते हैं सैंपल के ऊपर? कवर स्लिप. तो करेक्ट आंसर होगा कवर स्लिप. Then which of this refers to a spherical bacteria? Remember shapes of bacteria. तो spherical मतलब क्या होगा? कोकाई. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. Then which of this is the primary causative organism for swine flu? Swine flu, so we all are knowing that it is caused by virus only. So option number C, virus. Then fourth is which of these microorganisms is used in the manufacturing of alcoholic beverages? Now for the alcoholic beverages we need fermentation process, और fermentation process में कौन से organism का use होता है? yeast का. तो here correct option is D, yeast. Fifth is which of these diseases can be prevented by a vaccine? Again 4 options are there. Now we know that for cholera vaccine is available, but ringworm it is not available.
मलेरिया के लिए भी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, रिंगवॉर्म के लिए अगेन कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो बचे कौन से ऑप्शन? बी ऑप्शन, दैट इज पोलियोमाइलिटिस एंड चिकन पॉक्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज पोलियोमाइलिटिस एंड चिकन पॉक्स. सिक्स्थ वन इज विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू अबाउट बैक्टीरिया. इसको समझो अच्छे से. इसमें नेगेटिव पूछा गया है कि इनमें से कौन सी चीज़ बैक्टीरिया के लिए सही नहीं है. तो इसमें अगेन ऑप्शंस दिए हैं. उसमें सी ऑप्शन देखो, दे ऑल आर हार्मफुल टू अस. अभी हमने क्या पढ़ा है कि बैक्टीरिया यूजफुल भी होंगे और हार्मफुल भी होंगे. तो ये एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो ये ऑप्शन सही होगा ये क्वेश्चन के लिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. देन सेवंथ इज विच ऑफ दीज आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स विथ क्लोरोफिल. प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म विथ क्लोरोफिल, याद करो कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में हमने ये पढ़ा था? इट्स ऑप्शन नंबर डी, एल्गी. एट्थ वन इज विच ऑफ दिस फाउंड इन मिल्क कोगुलेट्स टू फॉर्म कर्ड. 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लैक्टोबैसिलस, केसीन, एसिड इन मिल्क एंड नन. हम सबको पता है कि मिल्क में एसिड तो होता नहीं है, ठीक है, तो बचे 2 ऑप्शन. लैक्टोबैसिलस तो एक बैक्टीरिया है जो हम बाहर से ऐड करते हैं कर्ड के फॉर्मेशन के लिए, मगर इसमें पूछा है कि मिल्क में ऐसी क्या चीज़ है जिसके कोगुलेशन से हमें कर्ड मिलता है. तो याद करो यूजेस ऑफ बैक्टीरिया, उसमें आपको बोला है कि मिल्क में एक प्रोटीन होता है, नाम क्या है उसका? केसीन, जो कोगुलेट होके कर्ड बनता है जिससे थिक कर्ड हमें मिलता है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, केजीन. देन नेक्स्ट इज 9th, विच ऑफ दिस गेट्स फॉर्म्ड व्हेन फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस बाय यीस्ट. नाउ रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ फर्मेंटेशन. कि फर्मेंटेशन के एंड में हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑक्सीजन एंड वाटर के अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो इससे हमें 2 चीज़ें मिलती है, दैट इज अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. 10th वन इज विच ऑफ दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट. तो उसमें भी 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, बैक्टीरिया. Next exercise is of very short answer type questions. In that first one is give one word for the following. पहला है उसमें an instrument that makes smaller objects look larger. तो इसके लिए तो आपको सारी डेफिनेशन से याद करनी पड़ेगी. तो डेफिनेशन याद करो क्या आएगा इसमें? माइक्रोस्कोप, जिससे हम छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बड़ा देख सकते हैं. देन द ऑब्जेक्ट दैट इज व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप, उसको क्या बोला जाता है? स्पेसिमेन. थर्ड इज ऑर्गेनिजम्स दैट आर विजिबल ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, तो उसको बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बहुत ही आसान है, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फोर्थ इज द प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क, तो उसका नाम अभी हमने आगे डिस्कस किया था एमसीक्यू में, केसीन. देन फिफ्थ इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ शुगर इनटू एन एसिड और एन अल्कोहल, तो वो प्रोसेस का नाम क्या है? फर्मेंटेशन. इसके आगे भी मैंने बोला था कि फर्मेंटेशन की डेफिनेशन याद करो. सिक्स्थ इज द मेडिसिन्स दैट डिस्ट्रॉय सर्टेन डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स, तो उसके लिए तो आपको मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रोब्स याद करने होंगे. उसमें आपको आंसर मिल जाएगा क्या? एंटीबायोटिक, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मारा जाता है. सेवंथ इज द प्रोसेस बाय विच फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, तो ये तो बहुत आसान है, नाइट्रोजन फिक्सेशन. एट्थ इज अ नेचुरल साइक्लिक प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंटर्स द सॉइल एंड लिव्स इनटू द एटमॉस्फेयर, तो वो क्या है? नाइट्रोजन साइकिल. इसमें आगे ही लिखा है नेचुरल साइक्लिक प्रोसेस, मतलब साइकिल तो आएगा ही, और किसके लिए बोला गया है? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन साइकिल. नाइन्थ इज डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या है? उसका नाम क्या है? पैथोजन. एंड टेंथ इज डिजीज कोज्ड बाय ईटिंग फूड स्टफ्स दैट कैन कोज इलनेस, तो उसमें आएगा टाइफॉइड. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. These question answer you will write down in fair notebook. The first question is what is a microscope? What does it help us to view?
For this answer, take out page number 27. On the top, you can see the highlighted one. These will be answer. So write it down, the definition of microscope and what is the usefulness of it. Second question is, what are microorganisms? Name 5 major groups of microbes. For that, take out page number 27. On that page number, see the highlighted line. The first line represents the definition of microorganism, and then you have to write down main 5 groups that is written at the end. That is, microorganism can be divided into 5 major groups, that is bacteria, protozoa, algae, fungi and viruses. Third question is, where do fungi derive their nutrition from? For that, take out page number 28 of your textbook. See second paragraph on that page number, that is of fungi. In that one you have to write down this highlighted line, that is all fungi derive their nutrition from decaying matter. That's it. बहुत ही easy answer है और बहुत ही छोटा answer है. Fourth question is, what is a virus? Give 2 examples of viruses. For that, take out page number 28. Over there, the fourth paragraph is of viruses. In that one, the highlighted lines you have to write. उसमें देखो लिखा है, viruses are hard to classify as living or non-living, as on their own they show no signs of life. They reproduce inside the cells of organisms such as plants, animals or bacteria. And here are 2 examples of viruses, that is tobacco mosaic virus TMV is of plant virus, and human immunodeficiency virus, that is HIV. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ वन, व्हाट इज एन एंटीबायोटिक. यहाँ पे आपको एंटीबायोटिक की डेफिनेशन लिखनी है, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 13. ओवर देयर वन पॉइंट इज दैट इज मेडिसिनल यूजेस. Beneath that you can see the highlighted line, that is the answer, that certain bacteria and fungi are used in the production of medicines, that is called as antibiotics, that destroy certain disease causing microbes. यहाँ तक आपको लिखना है. Sixth question is, what is a vaccine? Name 2 diseases that can be prevented by a vaccine. For this answer, take out page number 30. वहाँ पे लास्ट पैराग्राफ देखो जो है मेकिंग वैक्सीन का, उसमें आपको हाईलाइटेड पॉइंट लिखने हैं. उसमें पहला तो वैक्सीन की डेफिनेशन, उसके बाद हाउ इट इज़ यूजफुल, एंड देन उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं. सेवन्थ क्वेश्चन इज डिफाइन नाइट्रोजन फिक्सेशन. इसमें तो सिर्फ आपको उसकी डेफिनेशन ही लिखनी है, विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 31. ओवर दैट द टॉपिक इज नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल इज देयर. उसमें पहली जो लाइन है वो है डेफिनेशन किसकी, नाइट्रोजन फिक्सेशन की, वो आपको लिखनी है. एट्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर पैथोजेंस, हाउ डू दे गेट स्प्रेड. उसमें आपको निकालना होगा पेज नंबर 32. वो पेज नंबर पे डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख के एक पॉइंट दिया है, उसके नीचे जो 2 लाइन से वो पैथोजन की डेफिनेशन है. तो पहले तो ये 2 लाइन लिखो, उसके बाद ये जो दूसरी लाइन मैंने हाईलाइट की है, दैट इज पैथोजेंस कैन एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्थी पर्सन थ्रू एयर, वाटर एंड फूड, डायरेक्टली वो लाइन लिखनी है. नाइन्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस. Give 2 examples of communicable diseases in animals. For that, take out page number 33. वहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट 2 लाइन वो है कम्युनिकेबल डिजीजेस की डेफिनेशन. तो पहले तो ये डेफिनेशन लिखो, उसके बाद उसके नीचे एक टेबल दिया हुआ है, दैट इज टेबल 2.1. उसमें डिजीज़, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वगैरह करके टेबल दिया हुआ है. उसमें से आपको सिर्फ 2 डिजीज़ के नाम लिखने हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव टिक्ड मार्क मलेरिया एंड कोलेरा. 10th question is define food preservation. Name any 3 methods of food preservation. For that, take out page number 35. On page number 35, food preservation topic is there. In that one, the second paragraph you have to write up to I have highlighted, and then after you will write methods of preservation, boiling, dehydration and canning. Now next exercise is of long answer type questions.
These you have to write down in F&B of biology. The first question is explain how microscopic objects can be viewed under a microscope. Take out page number 27. On that page number about microscope it is given. ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी है. पहले इसकी डेफिनेशन आएगी, उसके बाद स्पेसिमेन क्या है, कवर स्लिप, स्लाइड वगैरह, और उसके बाद लास्ट में द बेसिक स्टेप्स टू यूज़ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है जो ऑलरेडी हाईलाइट की हुई है. सो राइट इट प्रॉपरली एंड पॉइंट वाइज. The second question is discuss with examples some commercial uses of microorganism. For that take out page number 29 and then answer will be continue on page number 30. On that page number you will find commercial uses of microorganism. उसमें टोटल 5 यूजेस है. ठीक है, तो वो पाँचों के बारे में जो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो प्रॉपरली विथ टाइटल आपको लिखना है. तो पहला है मेकिंग कर्ड एंड चीज़. उसमें आप देख सकते हो मैंने कितने पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं. ठीक है, उसके बाद दूसरा यूज़ है मेकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड मेकिंग ब्रेड. तो यहाँ पे भी जितने भी पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं वो आपको लिखने हैं प्रॉपरली. अभी पेज नंबर 30 पे देखो, वहाँ पे चौथा पॉइंट है जो है मेकिंग विनेगर, कॉफ़ी एंड टोबैको, और 5th पॉइंट है मेकिंग टूथपेस्ट. तो यहाँ पे भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये आंसर में 5 यूजेस के बारे में लिखना है जो पेज नंबर 29 एंड 30 पे दिया हुआ है. थर्ड क्वेश्चन इज हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स. सो for this answer you have to take out page number 30 and then the answer will be continue on page number 31. In this answer you will write down the medicinal uses of microorganisms. उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे. एक तो फर्स्ट मेकिंग एंटीबायोटिक्स, देन मेकिंग वैक्सीन्स, देन मेकिंग फूड सप्लीमेंट्स एंड हाउ दे आर यूजफुल इन ह्यूमन बॉडी. सो ये 4 पॉइंट के बारे में आपको लिखना है. पहला पॉइंट जो पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दिखाया हुआ है, वो आपको लिखना है. पहला तो मेकिंग एंटीबायोटिक एंड देन मेकिंग वैक्सीन. अभी आपको समझ में आ ही गया है कि जो भी पॉइंट्स मैं हाईलाइट करती हूँ वो ही आपको लिखने होते हैं. देन टर्न पेज नंबर 31. पेज नंबर 31 में ऊपर के 2 पॉइंट्स ही लिखने हैं, दैट इज़ मेकिंग फूड सप्लीमेंट एंड हाउ दे आर यूजफुल इन ह्यूमन बॉडी. ये आंसर में ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं. ओके, समझ में आ रहा है ना. फोर्थ क्वेश्चन इज विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड डायग्राम डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज 10th स्टैंडर्ड इज कंसर्न. नाउ फॉर दिस आंसर टेक आउट पेज नंबर 31. On this page number, one point is there that is agricultural uses. In that point, nitrogen fixation and nitrogen cycle is there that you have to write down. Here, definition of nitrogen fixation is to be written. Then, how it is getting cycled into the environment that you have to write. Along with the diagram that is of nitrogen cycle which is given on same page number 31. Please refer textbook for the drawing of nitrogen cycle. Fifth question is describe briefly disease caused by microbes in plants. ये तो बहुत ही छोटा आंसर है जो पेज नंबर 34 पे दिया गया है. सो प्लीज टेक आउट पेज नंबर 34. Can you see this on this page number which is given below the table? This thing you have to write point wise properly. Sixth question is what is food poisoning? How do we detect whether a food stuff is fit for consumption or not? इसके लिए आपको रिफ़र करना पड़ेगा पेज नंबर 34. ऑन दैट पेज नंबर एट लास्ट यू विल फाइंड दिस आंसर. तो इधर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड स्पॉइलेज करके जो पॉइंट दिया है वो पूरा आपको इसमें लिखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई अप टू गैस फॉर्मेशन. अंडरस्टूड? The 7th question is write short note on some common food preservation methods. For this answer you have to refer page number 36. Now on that page number one table is given, that is table number 2.3. In that one total 7 methods for the food preservation is given. Out of 7 any 5 methods you have to write in the fair notebook. Understood?
Now the next question is from the let's observe. First question is the orange shown here fit for consumption? Why? So here आपको जो ऑरेंज दिख रहा है वो क्या खाने लायक है? Obviously not. तो उसका आंसर आप लिखोगे no, because it is spoiled. Second question is give any 5 features that help us to identify whether a food is fit for consumption or not. अभी इसके लिए आपको वो 5 क्राइटेरिया लिखने हैं, जैसे मैंने लिखे हैं वैसे ही लिखोगे आप भी. फर्स्ट में फॉल ओडर, देन सो टेस्ट, सरफेस डिस्कलरेशन, स्लिमी सरफेस एंड गैस फॉर्मेशन. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फ्रॉम लेट्स कनेक्ट. इट इज़ ऑल्सो देयर ऑन पेज नंबर 14. उसमें पूछा क्या गया है, माया फॉरगॉट अ वेजिटेबल सैंडविच एंड स्लाइसिस ऑफ ऑरेंज इन हर टिफिन बॉक्स इनसाइड द स्कूल बैग ओवर द वीकेंड. In your own words, describe in what condition she would find the food stuff on Monday. अगर आप अपना लंच बॉक्स कहीं पे भी भूल जाते हो, हाँ उसमें खाना होना चाहिए, हाँ अगर भूल जाते हो 2-3 दिन के बाद आप देखते हो तो जो भी उसमें फूड है उसकी क्या कंडीशन देखने को मिलेगी वो आपसे पूछा गया है. तो डेफिनेटली फंजाई का ग्रोथ ही तो मिलेगा. तो उसमें आप क्या लिखोगे, शी विल ऑब्जर्व कॉटन लाइक ग्रोथ ऑफ मोल्ड. अभी मोल्ड क्या है, इट इज़ वन ऑफ द फंजाई ऑन द सरफेस ऑफ फूड स्टफ ऑन मंडे. समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही लिखना. अनदर एक्सरसाइज फ्रॉम लेट्स अप्लाई. दीज ऑल्सो यू विल डू इन टेक्स्ट बुक. फर्स्ट क्वेश्चन इज पूजा फॉरगॉट अ फ्यू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड इन अ ब्रेड बॉक्स फॉर अ फ्यू डेज. तो अभी उसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं, उसके आपको आंसर लिखने हैं इधर. What could she expect to grow on the bread? क्या देखने को मिलेगा उसको, ग्रोथ ऑफ फंजाई. Then where did the spores for these microorganisms to grow on them come from? कहाँ से आए वो स्पोर्स जिससे फंजाई का ग्रोथ हुआ, तो कहाँ से आ सकते हैं, फ्रॉम एयर. Then what could she have done to save those slices of bread? उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. जनरली हम घर पे क्या करते हैं, अगर अगले दिन की ब्रेड है ये सीज़न में स्पेशली, और अगर आपको उसको प्रिजर्व करना है, दूसरे दिन यूज़ करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको फ्रीज में रखेंगे. सो कीप इट इन फ्रीज. सेकंड क्वेश्चन इज मदर इज ट्राइंग टू मेक कर्ड एट होम. विल इट बी मोर डिफिकल्ट टू मेक इट इन समर और विंटर मंथ्स? वाई? समर में बनाना मुश्किल होगा या विंटर में? अभी आपको कर्ड बनाने के लिए चाहिए क्या, टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर आपको चाहिए. तो आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा या फिर अपनी मम्मी से पूछना ये क्वेश्चन के बारे में कि जनरली इन विंटर मंथ्स वी आर फाइंडिंग मोर डिफ़िकल्टी इन मेकिंग कर्ड बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर. तो या इधर हम लोग बहुत ही शॉर्ट में लिखेंगे आंसर, बिकॉज जगह नहीं है ना इसलिए. ठीक है. ऑन सेम पेज नंबर वन मोर एक्सरसाइज इज देयर, दैट इज let's analyze and evaluate. These also you will do in textbook as I did. First question, analyze which of the items shown here would the baker need to make his buns. Give reason for your choice. अभी यहाँ पे 3 बॉक्सेस आपको दिखाए गए हैं. आउट ऑफ दिस 3 बेकर्स कौन सा बॉक्स, कौन सी चीज़ यूज़ करेगा बेकिंग के लिए? तो हम सबको पता है क्या आएगा, ड्राई ईस्ट. तो आंसर पहला है ड्राई ईस्ट. अभी क्यों? बिकॉज ड्राई ईस्ट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस विच इज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग. अंडरस्टूड? नाउ सेकंड क्वेश्चन इज assess why the chosen microorganism is first added to warm water and sugar before using it to make bread. अभी क्यों हम ऐसा करते हैं, ये जनरली हम घर पे भी तो करते ही है. क्या करते हैं, यीस्ट को एक्टिवेट करते हैं. तो आंसर इसका क्या आएगा, फॉर एक्टिवेशन पर्पस. बिकॉज एक बार यीस्ट एक्टिव हो गई, बाद में ही वो अपना ग्रोथ दिखाएगी थ्रू दी रिप्रोडक्शन. सो मतलब millions of yeast will be formed after the activation of yeast, and then we will get the product. Now on page number 40 let's recall करके एक एक्सरसाइज है जो यहाँ पे दिखाई गई है, वो आपको होमवर्क में करनी है, मतलब अपने आप से करनी है टेक्स्ट बुक में ही. उसके लिए आप चैप्टर को अच्छे से समझो, रिफ़र करो टेक्स्ट बुक, और बाद में यहाँ पे आंसर्स लिखना विद द हेल्प ऑफ पेंसिल.
एक बात याद रखो, टेक्स्ट बुक में जो भी आप एक्सरसाइजेज लिखते हो सारी की सारी एक्सरसाइज आप पेंसिल से ही लिखो। मतलब अगर कभी भी आपको कुछ भी रब करना पड़े या फिर इरेज करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ ऑन पेज नंबर 42 one worksheet is there. This worksheet is from the chapter 1 and chapter 2 that you have to solve in the textbook only with the help of pencil. Think about the concept properly and then solve. Even though if you find any of the query, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम लग रही है या फिर डाउट हो रहा है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू एंड गुड लक फॉर द कंप्लीशन ऑफ योर वर्क।